بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں پاکستان کی سیاسی منظرنامہ وہ اچانک سے تبدیل ہوا۔ عمران خان کے بیانات پر بیانات، اور ان بیانات نے طاقتوروں کے ہاتھ پاؤں پھلا کے رکھ دیے ہیں، اور لرزہ طاری ہے کہ عمران خان پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، وہ سرنڈر نہیں کر رہے، وہ ڈیل نہیں کر رہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ڈیتھ وارنٹ تو یہاں سے نکل جائیں گے، میری لاش تو اڈیالہ جیل سے جائے گی، لیکن عمران خان کا سر جھکا ہوا اڈیالہ جیل سے نہیں جائے گا۔ تو 48 سے 72 گھنٹوں میں یہ تیسرا بڑا پیغام عمران خان کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا جی ایچ کیو یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ خطرناک ترین موڑ ہے۔ یہ پیغام کیا پہنچایا گیا ہے؟ پہلے دو پیغامات میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں رکھ دیے تھے، اب یہ تیسرا بڑا پیغام طاقتوروں کی قیادت نے عمران خان کو پہنچا دیا ہے۔ اس پیغام میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، کیا شرائط ہیں، سکرین پر آپ کے سامنے وہ شرائط آج پہلی بار میں چلوانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت صورتحال کس جانب جا رہی ہے، اور جو یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، جو یہ نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے، اس میں کون فاتح ہے اور کون اس وقت ویلن ہے۔ اور پھر دوسری جانب کپتان جو ہے اس نے بھی پلٹ کر وار کیا ہے، اور کپتان کا اس سے جواب بھی آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس پر کیا جواب دیا ہے اور ان کا رد عمل کیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ اہم ترین تفصیلات رکھنی ہیں، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے ایک خط لکھا گیا، اور خط میں آپ کو بتایا، میں نے بیشتر بار ہم نے اس کو ذکر کر لیا۔ اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ججز کے خط کی تحقیقات ہوتی، اس پر بات چیت ہوتی، اور پھر ایگزیکٹو کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جاتا، لیکن یہاں پر آپ سب کو پتہ ہے کہ طاقتور کون ہے، کس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی بات، اور یہ اگلے چیف جسٹس بھی ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیں گے، وہ ریفرنس دائر ہو گیا۔ اور پھر اب جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں اس کی خبر جو ہے وہ دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا بڑا واضح طور پر رد عمل دے دیا ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت قانون دائرے کے ساتھ کھڑی ہے، اس وقت آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ججز ان کے ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم صاحب ہوں، چاہے وہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز ہوں، سپریم کورٹ کے 3-4 آنریبل ججز، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی وہاں پر اپنے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن ان پر دباؤ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، آپ کو برطرف کر دیں گے، آپ کو سزا دے دیں گے، یا آپ کو مار دیں گے۔ یہ دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ تو اب محسن اختر کیانی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو فارغ کر دیں گے، اور اس وجہ سے ان کو دبانے کے لیے یہ ریفرنس دیا گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف دائر شکایات کو ججز کو خوفزدہ کرنے کی حکومتی کوشش قرار دے دیا ہے، اور ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ ایک مخصوص جج کے خلاف مکس کنڈکٹ کا ریفرنس عدلیہ مخالف منظم منصوبے کا شاخسانہ ہے۔ چیف جسٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ہراساں کرنے کے واقعات کا نوٹس نہیں، لیکن چیف جسٹس یہاں پر ستو پی کے سویا ہوا ہے، چیف جسٹس لمبا لیٹا ہوا ہے، چیف جسٹس اپنی نوکری بچانے کے لیے ایکسٹینشن کی خاطر اس نے اپنے تمام ججز کی عزت کو پامال کر دیا ہے، بلکہ اپنی عزتوں کو پامال کر دیا ہے۔ وہ جناب اس وقت ننگا ناچ کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان میں ننگا ناچ دیکھنا ہو تو وہ آئے اور چیف جسٹس کا رقص دیکھیں۔ چیف جسٹس تو ہر کسی سے پوچھتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرا رقص کیسا لگا ہے، میں کیسا ناچتا ہوں، یا پھر میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گاہک اگر امیر ہو تو چھٹی والے دن بھی جو ہے وہ طوائف ناچتی ہے، تو یہاں پر چھٹی والے دن بھی طوائفیں ناچتی رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جو ہے وہ حالیہ صورتحال ہے، جو انفارچونیٹ مجھے آپ کو بتانی بھی پڑ رہی ہے۔ تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کونسل میں دائر کردہ شکایات کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ ججز کو جو ہے وہ خوفزدہ کرنے کی جو ہے وہ سارا کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب شاہد ترکان عباسی صاحب، انہوں نے اپنی نئی پارٹی جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے، تو ان کی نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے قوائف الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں، اور الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سیاسی جماعت بھی رجسٹر کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ خقان عباسی صاحب نے ایک نیا جو ہے وہ سرپرائز دیا۔ اور پھر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد غلط بیانی کا کیس ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پر احتجاج کر دیے، اور احتجاج ہونے پر اب ان پر نوٹس بھی جاری ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانون کے خلاف ورزی، لاپرواہی اور غلط بیانی کے کیس میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت کی، اور دوران سماعت
जो कमर जवेद बाजवा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज आया, जिस पर अदालत ने एतराजात पर नोटिस भी जारी कर दिए हैं। और कमर जवेद बाजवा के वकील ने कहा कि जो दरख्वास्त 6 माह बाद जमा हुई उसकी कोई वक़्त नहीं है, खारिज कर देनी चाहिए। इस पर एफआईए ने अपना मौक़िफ़ दिया कि दरख्वास्त आ गई है तो हम कानून के मुताबिक देखकर ही फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एफआईए को पहले देखना है कि उसमें कोई जुर्म बनता है या नहीं बनता। इससे कबल 2222A का केस आया था और इसमें सीनियर 3 जजेस ने ऑर्डर किया था, जिन सीनियर जजेस ने ऑर्डर किया वो ऑर्डर नहीं करता। अदालत में सहाफ़ी के वकील ने दरख्वास्त पर इत्तदाद करते हुए कहा केस डिवीजन को जो है वो भेजने की सलाह की है। और इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि देखेंगे कि पर्चा दें या ना दें, मेरा काम ये नहीं है कि काम फिर भी एफआईए ने कहा है, कल को पता एफआईए कह दे के पर्चा बनता है या जो है वो बाद में कह दे कि नहीं बनता। अदालत ने कहा कि कानून और कायदे के मुताबिक एफआईए को इंक्वायरी का फैसला करना है और जरूरत हुई तो हम डिवीजन बेंच को भी मामला भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी नहीं कहूंगा कि रोजाना ब्लॉक तंग करें या तंग ना करें, जो भी तफ्तीश करनी होगी उसे कहेंगे कानून कायदे के मुताबिक देखें। लेकिन जनाब ये सारी चीजें आपके सामने और इस केस को फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है मुलतवी कर दिया है, यानी कि ये कानून कायदा है जिसकी आमिर फारूक साहब बात कर रहे हैं कि आप जो है वो एक आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ के ऊपर जो है बात डाल पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने कि यहाँ पर आप ताकतवरों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। जिसने ताकतवरों के खिलाफ बोलने की कोशिश भी की है उसकी ज़बान काट दें, उसको कत्ल कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया, उसको घर से उठा लिया। मेरी मिसाल जो है वो आपके सामने है कि जैसे हमें घर से उठाया गया था। ये जो है वो पाकिस्तान की एक तारीख लिखी जा रही है और उसमें शायद हमारा एक नाम भी हो कि हमने कानून और कायदे का साथ दिया था, हम कानून के लिए खड़े हो गए थे, हम अपने मुल्क के लिए खड़े हो गए थे, हम उस लीडर के लिए खड़े हो गए थे। वो सहाफ़त से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा है, अगर एक शख्स हकीकी आज़ादी की बात करता है, अगर एक शख्स मेरे बच्चों की जंग लड़ रहा है तो मैं क्यों उसका साथ ना दूं? मैं क्यों जो है वो जो पाकिस्तान में वो एक मुनाफिकत भरा चेहरा आपके सामने मैं रखता रहूं कि जी देखें ये पत्थर सफ़ेद है तो मैं न्यूट्रल हूं, मैं इसको सफ़ेद नहीं कह सकता, मैं कहूंगा कि वो सफ़ेद है, मैं उसकी बात करूंगा। हक और सच की जंग में अब जो बातिल की जंग है हक और बातिल की, उसमें हक ने हमेशा जीतना है, क्योंकि बातिल तो है ही मर मिटने वाला। हक पहले मर्ज है या फिर बातिल पहले मर्ज है, लेकिन हक ने जीतना है। ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर लिख दिया, ये कुरान का फैसला है। जब अल्लाह ने लिख दिया तो मेरा ईमान अल्लाह ताला पर होना चाहिए, कुरान मजीद पर होना चाहिए, मेरा ईमान ताकतवरों के ऊपर जनाब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं। अब इमरान खान साहब को जनाब तीसरा पैगाम पहुंचाया गया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक मोड़ पर आ गई है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तवातुर से बयान आ रहे हैं। इमरान खान साहब पिछले 48 से 72 घंटों में जैसे एक्टिव हैं और उनके बयान जो डैला जेल से आ रहे हैं उसने पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील ही करके रख दिया। ऐसे ही जो है वो बयान पहले कभी किसी की जानिब से नहीं हमने देखे। जैसे आज इमरान खान डट के खड़ा हुआ है, आपने इससे पहले देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो डील करके लंदन भाग गया, मुशर्रफ ने हाथ डाला डील करके सऊदी अरब भाग गया, जरदारी के ऊपर हाथ डाला गया वो डील करके दुबई भाग गया, बेनज़ीर पर हाथ डाला गया वो यूरोप भाग गई। और जनाब ये पाकिस्तान में हमेशा आपने देखा होगा कि सियासतदान डील करके हमेशा मुल्क से बाहर भागे। ये पहली बार एस्टैब्लिशमेंट ने इतना काउंटर जो है वो प्रेशर देखा होगा और आज से पहले उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जो निज़ाम आज एक्सपीरियंस कर रहा है। क्योंकि एक ज़िद्दी, एक जो है वो बहादुर, माँ का बहादुर बेटा आज खड़ा हुआ है, वो अपने मुल्क की कौम की जंग लड़ रहा है और वो पीछे हटने को जनाब तैयार नहीं है। तो अब इस सारी सूरत हाल में जनाब इमरान खान साहब को पहला पैगाम पहुँचाया गया था कामना शाहिद सहाफ़ी की जानिब से। उन्होंने कहा कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट के जो हाई प्रोफाइल सोर्सेज वो बता रहे हैं किसी 9 मई की मनसूबा साज और जो है वो साजिशों के जो अनासर हैं हम उनको माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो माफ़ी ना मांग लें। और यही बात सलीम साफ़ी साहब ने की कि जनाब इमरान खान मुंबई की मजम्मत कर दें, माफ़ी मांग लें, हम जो है वो खान को माफ़ कर देंगे। लेकिन इमरान उधर से ये बात करता है कि जनाब आप मेरे से माफ़ी मांगें कि आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आपने गलत किया, आप इसको तस्लीम करें, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। यानी कि ये 2 पैगाम जो हैं वो खान साहब को भेजे गए। और दूसरा पैगाम एजाज सैयद की जानिब से भेजा गया सहाफ़ी। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान बात ना आया वो इसी तरह से बात करते रहे तो उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह से जो है वो रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये पैगाम जो है वो कहाँ से पहुँचाया गया? एजाज सैयद को किसने कहा कि जनाब आप ये जो है वो टीवी पर जाकर बात करते हैं? कोई मुँह उठाकर, यानी कि मैं मुँह उठाकर तो मैंने तो ये बात करती कि जनाब जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे अगर वो ये नहीं करते। मुँह उठाकर कोई सहाफ़ियत से बात नहीं कर देता, और वो भी जियो न्यूज़ जैसे चैनल के ऊपर, इंतहाई क्रेडिबल न्यूज़ चैनल जिसको पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज पाकिस्तानी देखती है और फिर उसका इंपैक्ट भी बढ़ता है। तो वहां पर बैठकर एक एजाज सैयद सहाफ़ी जो हैं वो ये बात कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एक पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान को, अगर रिहाई के बाद जो है वो बाहर निकल कर बात करेंगे, एहतजाज करेंगे, या तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। ये दूसरा पैगाम खान को पहुंचाया गया। अब तीसरा पैगाम जो है पहुंचाया गया है अंसार अब्बासी साहब की जानिब से। सीनियर सहाफ़ी हैं और आप सबको पता है कि जनाब ये ताकतवरों के बड़े करीब हैं। वो लिखते हैं कि खान साहब मामलात को ठंडा होने दें,
دیں۔ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उनकी काबीना के पेशावर कोर कमांडर हाउस में इजलास और अफ्तारी की खबरों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई लोगों की तरफ से तानों का सामना है कि लाहौर कोर कमांडर हाउस को आग लगाने वाले पेशावर कोर कमांडर हाउस में खामोशी से इजलास और अफ्तारी के लिए पहुंच गए। तहाँ मुझे खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान खलीज कम हो सके। और जनाब उन्होंने कहा कि 9 मई को जो हुआ उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानी का बुनियादी किरदार था। वैसे तो फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते 9 मई से पहले मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे, लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के लिए हालात बहुत खराब हो गए। बार बार इमरान खान भी ये शिकायत करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। इमरान खान ने यह भी बात की अपनी गिरफ्तारी और इंतखाबात के बाद भी एक से ज्यादा मरतबा यह बात की। और इसी तनाजुर में KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काबीना समेत कोर कमांडर हाउस पेशावर में इजलास और अफ्तारी में शिरकत मेरी नजर में एक ब्रेक थ्रू से कम नहीं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि इस मीटिंग का फोकस सूबे के सिक्योरिटी मामला थे, जो एक तरफ KPK में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमत और फौज के दरमियान बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप और दोनों के दरमियान माजी की तलखियां कम करने का बायस भी बन सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तहरीक इंसाफ की फौज और हुकूमत के दरमियान राब्तों में इजाफा हो और जिसमें जो सबके लिए बेहतरी है, लेकिन इमरान खान की पॉलिसी मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल में अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए एक बार फिर फौज की आला क़यादत को निशाना बना लिया। अब ऐसे में फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान जिस खलीज में कमी और खात्मे की बात मैं कर रहा हूं और जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ खुद भी चाहते हैं, वो कैसे मुमकिन होगा। खान साहब का एक बड़ा सीरियस मसला यह है कि वो ना अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं, ना ही उनको अपनी जुबान पर कंट्रोल है, और इसी गुस्से और ऐसी बातों ने उनको इस हाल में पहुंचा दिया है। लेकिन वो आज डट के खड़ा हुआ है। वो अजीब उसके अंदर गुस्सा है कि वो अपनी कौम के लिए कह रहा है कि जनाब मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं डील नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दे दिए हैं, डील कर लो, सरेंडर कर लो, माफी मांग लो। मैं कहता हूं कि मुझे मौत कबूल है, मैं ये डील सरेंडर नहीं करूंगा, मुझे चौथा ऑप्शन कबूल है। अब ऐसा अजीब शख्स आप कहां से लाएंगे जो अपनी कौम के लिए जो है वो जो जंग लड़ रहे हैं। और उन्हें गुज़िश्ता रोज अखबार में शाया जो बातें की, उन्हें पढ़कर इमरान खान की अपनी ख्वाहिश है कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, वो कैसे पूरी हो सकती है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर वो जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकते हैं तो वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। गोया एक ही गुफ्तगू में वो मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं और उन पर इल्जामात की बौछार भी कर रहे हैं। ये कैसी पॉलिसी है? ऐसे बयानात से इमरान खान, तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान का फायदा होगा? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, खान साहब को चाहिए अपने गुस्से और जुबान पर कंट्रोल रखे। यह तीसरा पैगाम है। और ये उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम डायरेक्ट वो अपनी जुबान पर ना लें, तो कुछ अरसे के लिए वो खामोशी भी इख्तियार कर लें, अपनी तवज्जो अदालतों से रिलीफ लेने पर मरकूज करें ताकि अपने आप और अपनी अहलिया को जेल की सलाखों से बाहर ला सकें। ये एक जो है वो खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है कि वो डायरेक्ट फौजी क़यादत को मलाइन न करें और वो खामोश हो जाएं ताकि उनको ईद के बाद फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। और वही खबर है जो मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बता रहा था कि खान साहब को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। तो आज बाकायदा तौर पर हमारी उस खबर की जनाब तस्दीक हो चुकी है। और इस दौरान अपनी पार्टी क़यादत की और जिम्मेदारों को फौज और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशिश करने देनी चाहिए और खान साहब मामलात को ठंडा होने दें। जनाब पैगाम आज वहां से पहुंचाया गया है। क्या जो है वो वहां से हार मान ली गई है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खान साहब जो है वो हार नहीं मान रहे, तो फिर इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दे दिया। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और वो आजकल जिस तरह से खड़े हुए हैं, इनको हमें दोनों हाथों से सैल्यूट पेश करना चाहिए। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ जरदारी को फतह कर सकते थे और उनको फतह कर चुके हैं, मुझे नहीं कर सकते। ये बयान कोई माई का लाल दे सकता है पाकिस्तान के अंदर? इस माहौल के अंदर रहकर कोई माई का लाल पैदा नहीं होता जो ऐसे आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो चुका हो। वो खान खड़ा हो गया, वो कहता है कि आप जरदारी को फतह कर लेंगे, आपने जनाब नवाज शरीफ को फतह कर लिया, आप मुझे फतह नहीं कर सकते, मैं डील नहीं करूंगा, और किसी ने मेरे नाम पर डील की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये खान साहब ने जो है वो बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर किसी ने मेरे नाम पर डील की तो मुझसे बुरा तब नहीं होगा। तो खान साहब ने रंदा फेर दिया है कि जनाब मैं डील नहीं करूंगा। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।